Hello guys, this beautiful village name is Ichhapur. Name of my dear granny, my father's mother. I had a blessing till 2 year. Till I was around 2.5 years. I had blessing of her. I have blessing of her till the end. This village situated in the bank of Mother River Ambika. So beautiful. This high street on the name of my community, Anavil Mohalla. That's a tank, water tank for whole village. Quite good water in the river. Now I am heading towards the national highway. Then for Chikhili, especially for Madras, because over there Vada Sambar is just 25 rupees, just as I uploaded in my previous videos, shorts. I love that, and it's a tasty and healthy. I can say it's not a premium restaurant, but as per with the time of dealing with the skipped EMI and a bit of bankruptcy, my major payment being hold by one is a political person. I am not taking his name right now, but it's just been around more than 2.5 months. So later on I love to give name because so much interest and plus interest on that amount, which is 90,000 rupees. So it matters, it 100% matters when you not left anyone in your family and you are dealing with your own, and you have to deal with the credit card bill, car EMI, two-wheeler Ola EMI, and Ola's payment also not been paid by the person, and also it's been delayed by 1 year. So I am gonna take much, at least regular interest 100%, because that Ola been sold to person who been in the Iraq during America-Iraq war and who just saved by around time of half an hour from American military, because American Air Force bombed, or maybe Iraqi army bombed. I just got that he just saved by half an hour, but he has no sense, and he been a very cheap man, because his brother doing landing in India of so if his intention was right, then he already paid to me, because I charged only 1,10,000 and Ola is a 1,90,000, and it almost new. So if you calculate, any person gonna sell not less than at least 1,35,000, but I sold on my father's name, so discount is much bigger, but time being collapsed, so 29,000 I'm not gonna get, at least 37,000. I hope he gonna pay me, because EMI been skipped, and I have to make I am making video, I am sharing my life story, I am sharing my biography, I am sharing my experiences, how people are tend to take advantages in this area. They are not even gonna pay you if despite you are gonna give them a large huge discount on even a brand new product. This is the very bad intention, like evil. तो मैं यही कह रहा था कि मतलब एक तो पॉलिटिकल पर्सन के पास से लेने हैं मेरे को पैसे 90,000, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 6 महीने हो चुके, नाम लूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मतलब एक मतलब वो सीनियर सिटीजन
तो नहीं है लेकिन सीनियर है, लेकिन मतलब समझ में नहीं आता यार, 2.5 महीना हो गया है यार उसे, मतलब सेंसलेस, मतलब यार फोकट में मतलब ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, जितने उससे लेने हैं उससे तो मतलब 15% तो मेरे को बैंक को भरने ही पड़ेंगे मेरे को, और मैं भरूंगा ही, क्योंकि मेरे को जो मेरे माँ बाप के नाम पे सेवा करनी है वो मैं करते ही रहूँगा, और जो मैंने की है मैं, और जो मैं आगे ले जाऊँगा आपके आशीर्वाद से, आपके व्यूज़ से, आपके सब्सक्रिप्शन से आप तक भी पहुँचाऊँगा। फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर गोना गेट अ गिफ्ट, एंड लेटर ऑन सब्सक्राइबर ऑल्सो गोना गेट अ गिफ्ट 100%। ओला वालों ने तो मतलब हद कर दी, मतलब घूमने जाता है ऐसा वैसा, मतलब उसका भाई मतलब बैग पे पैसे घुमाता है, उसे पता भी नहीं है यहाँ पे गवर्नमेंट लगी हुई है कि बैग पे पैसे घुमाना अब बंद होने वाला है, और मैं भी उसके फेवर में हूँ, क्योंकि उसमें क्राइम बहुत होते हैं और इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई रहते हैं, और बैग पे पैसे घुमाना फर्म का काम है, बैंक का काम है, वो लोग बहुत कम इंटरेस्ट पर वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जुगाड़ नहीं बोलूँगा, और वो इकोनॉमी वाइज भी बहुत फ़ायदेकारक रहता है, क्राइम भी नहीं होते, सिविल से मतलब काफ़ी चीज़ फिल्टर हो जाती है, जेन्युइन पर्सन और जो पक्का रहता है अपने जुबान का, ईमान का, अपने कर्तव्य का, अपनी प्रामाणिकता का, मतलब मैं तो क्या बोलूँ, मतलब मेरे दिल में से तो मतलब उसके लिए अपनी करनी पे ही वो जाए तो इतना अच्छा है कि मेरे को जो इनको पैसे देने हैं वो थोड़े बहुत ही है, और मैं ऐसा नहीं है मैं 50-100 रुपये ज़्यादा ही दूँगा, और जिनका मतलब 2-3 हज़ार में उनको 100-200, तो उनको भी बुरा नहीं लगे मतलब तो जिनसे लेने हैं उनसे ऑलरेडी मतलब लेस देन 50% ले रहा हूँ, फिर भी सालों ने बाकी रखे, नाम भी रिवील कर ही दूंगा, मतलब जैसे वो कैंगन वाटर फ्रॉड वाले और ADMS EV की कंपनी है फ्रॉड वाले, MLM मार्केटिंग, झूठे सपने, झूठे फोटोज़, स्वामीनारायण गैंग, मतलब जो अमृतसर का सरपंच है अभी, मतलब पता नहीं सरपंच बना तो मतलब एक तो रिजर्वेशन से बिलोंग करता है वो, तो मतलब पता नहीं, मतलब मैं तो बोलूँगा ही, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे को कि मेरे जो सब्सक्राइबर उसमें सब है, लेकिन मैं इसलिए बोलूँगा कि ये रिजर्वेशन वाले गलत करते हैं ना, तो जिनको वाकई में फ़ायदा मिलना चाहिए ना उनको नहीं मिलता, क्योंकि बाकी सब तो ऐसा ही देखेंगे कि रिजर्वेशन वाले कर रहे हैं, सब लोग आपकी तरह और मेरी तरह ओपन माइंडेड और सेक्युलर थोड़े होते हैं कि जो मतलब रेगुलर ब्लड डोनेट करे, अपनी हेल्थ अच्छी हो तब एवरी 3 मंथ्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एड्रेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं देसाई हूँ, अनाविल ब्राह्मण, मेरे दोनों फादर मदर, मेरे एंसेस्टर सब, मतलब 5-6 पीढ़ी तक तो मैं चेक कर सकता हूँ कि सबके सब वही है, तो कुछ ना कुछ मतलब कैलकुलेशन रहता ही है गवर्नमेंट का और पॉलिसीज़ का कि सबको मतलब फ़ायदा मिलना चाहिए, जिनके साथ अन्याय हुआ है तो उनको भी राइट मिलने चाहिए, ज़्यादा राइट मिलने चाहिए वगैरह वगैरह, तो उसी के रिगार्डिंग उनका कैलकुलेशन रहता है कि मतलब पिछड़ी जाति और उनको मतलब रिजर्वेशन, OBC, SC, शेड्यूल कास्ट, ST, शेड्यूल ट्राइब्स, और एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत सही है, क्योंकि उसमें क्या है कि जो आदमी जो काम करता है उसे वो मिलता है, चाहे वो मतलब पानी पूरी बेचने वाला हो या फिर रेस्टोरेंट की चेन का मालिक हो, या ये भी पॉसिबल है, आप अगर क्वालिटी और टाइम के साथ, वक्त के साथ अपडेट करते जाओ बैंक के साथ और सही रहो तो इट्स पॉसिबल। क्योंकि अभी जो ओपन लेटर का वीडियो दिख रहा था बंदे का, जो यंग मैन है, रियली वेरी इंस्पायरिंग, आई गेस फ्रॉम अप नॉर्थ, ओपन लेटर ये मतलब गवर्नमेंट जॉब में उतना एंथुजियाज्म नहीं रहता, क्योंकि जैसे उसने बहुत ही ग्रेट एग्जांपल दिया सुंदर पिचाई सर, जो 2005 अराउंड में या 2015 में गूगल को ज्वाइन किया था और अभी गूगल के CEO बन चुके हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में तो मतलब ऑलरेडी हाई, मतलब वेरी हाई सैलरी मिलती है इंडिया में, इंडिया की इकोनॉमी कंपैरिजन से, तो लेकिन उसमें वो मोटिव नहीं रहता, मतलब प्रमोशन का और वो सब, तो उसकी वजह से बंदे को सैलरी मिलेगी, हाई सैलरी मिलेगी, लेकिन बंदा काम ढंग से नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सबको कुर्सी तोड़ने की आदत पड़ चुकी है, देसी भाषा में बोलूँ तो मिल रहा है तो मिलता ही रहेगा, तो मतलब जैसे मतलब उनके बाप का देश हो वैसे,
नहीं मतलब ऑलरेडी उनको हाई सैलरी मिल रही है तो, और वो बिहेव भी अच्छी तरह नहीं करते, मीन्स ये तो हद हो गई यार। एक ऐसे कल्चर में जहाँ क्लाइंट मस्ट बी ट्रीटेड एज अ गॉड, मैन ग्राहक देवता भव और अतिथि देवो भव। तो उससे तो अच्छा है कि एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी है, प्राइवेटाइजेशन अच्छा है। और सरकार का काम बेल पकौड़ी बेचना और पेट्रोल डीजल बेचना नहीं है, सरकार का काम देश चलाना है। अगर प्राइवेट कंपनी ये सब काम करती है और अच्छे से टैक्स भरती है तो सरकार के पास भी इतना अच्छा पैसा रहेगा कि वो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे और हमारा भी बढ़िया काम होते रहेगा। यहाँ पे देखिए कुछ DGVCL का या ऐसा ही काम चल रहा है या फिर बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। ये मैं वीडियो 30 मिनट तक लूँगा। आगे एक टेम्पो है, अच्छा है यूट्यूब के तौर पर एक डेमोक्रेसी और सब अपने व्यू शेयर कर सके। एंटरप्रेन्योरशिप और प्राइवेटाइजेशन में बहुत सही है और गवर्नमेंट के पास पैसा अच्छा रहेगा। हाँ, इतना अच्छा है कि उनको टैक्स थोड़ा देखना चाहिए, टैक्स चोरी कम हो। बड़े लोग स्विस बैंक में और वहाँ पे मतलब टैक्स चोरी ना करें और उनका टैक्स रेगुलेट अच्छी तरह हो और गरीब वर्ग को टैक्स ना भरना पड़े। और जो मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि जो ओपन लेटर में बात बताई, जो किसान मतलब BMW और ऑडी अफोर्ड कर सकता है वो टैक्स तो भर ही सकता है ना। कई एक्टर बन जाता है, कई किसान बन जाते हैं। और यार एक्टर और किसान बनने के बाद आप टैक्स नहीं भरोगे तो यार आप देशभक्त कहाँ के हुए मेरे भाइयों। जय हिंद, वंदे मातरम। तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो आपका ही फायदा है, आपको ही रोड अच्छे मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, टॉयलेट बाथरूम हर जगह पे मिलेगा। जैसे मैंने मद्रास को यंग मैन से बात की वैसे तो टॉयलेट है ना अच्छा, मतलब अच्छा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि पेट खाली होगा तो पेट भरने जाएगा ना कोई। चलो ये रोड थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ की जियोग्राफी पहाड़ी एरिया है तो 15 मिनट तक ये वीडियो ऑडियो ले लेता हूँ मैं। हे प्रभु, એમાં એવું છે ને કે આપણા પેમેન્ટ અટકેલા છે ને પોલિટિકલ પાર્ટી છે એટલે આપણે થોડું હિન્દીમાં ને ઇંગ્લિશમાં શેર કર્યું અને સાથે ઓપન લેટરના થોડા એ ટેક્સ સ્લેબવાળી બી વિડીયો જો 1 વર્ષ પહેલાંનો હતો, ત્યાર પછી અત્યારે રિસન્ટલી ગવર્મેન્ટે ટેક્સ ઘણા ઓછા કર્યા છે જેના પર કરવા જોઈએ તેના પર, તો જ કન્ઝપ્શન થાય ને ઇકોનોમી વાઇઝ સારું પડે ને બધાને મોટી સારો મળે, કન્ઝપ્શન બી થાય ને બધા કંપનીને માર્જિન બી વધે, ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ બી આવે, કન્ઝપ્શન થાય તો કન્ઝપ્શન નહીં થતું હોય તો ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ક્યાંથી આવવાનું, જૂની ક્વોલિટી ચાલવાની। હે પ્રભુ, આ રોડ પર વિપાસનાનો એક આશ્રમ બી આવે છે જે અમારા ઘણા ફ્રેન્ડો ગયા હતા અને મને રેકમેન્ડ કર્યું હતું, પણ હું બ્રીથિંગની એક્સરસાઇઝ કરું છું ને નેચરલ વધારે કરું। આપણું કામ એવું ને કે નેચરલ વધારે ને લવ વોટ યુ ડુ વોટ યુ લવ ને ફૂડી મેન એન્ડ હેલ્થ કોન્શિયસ, લવ સ્વિમિંગ એન્ડ ઓટોમોબાઈલ એન્ડ ડ્રાઇવિંગ, नेचर, जंगल्स, एडवेंचर्स। और मैं वीडियो में डालता हूँ कि ये एज अ मतलब नॉन वेजिटेरियन में, तो कई मेरे मतलब नज़दीक के दोस्त भी बात करते हैं कि आज अभी गणेश उत्सव चल रहा है, सैटरडे है, तो मेरा जवाब उनको ये है, क्योंकि मैं गुरु जी को बहुत मानता हूँ। तो हमारे 10वें पितामह गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से मैं भगवान जो अकाल है, पूरक है, मतलब अनंत है, मतलब जो मतलब शिवलिंग भी दिखाता है, मतलब आकार से निराकार तक, तो भगवान ईश्वर अल्लाह निराकार है, मतलब जो समय से परे है। तो उसमें सैटरडे या आनंद चौदस ऐसा नहीं आता जब मेरे को लगता है कि मेरे हेल्थ वाइज, मेरे इम्यून सिस्टम को मेरे को हार्ड वर्क करना है तो मैं खाता हूँ। और मैं गाय भैंस को नहीं खाता क्योंकि उनको मैं पूजता हूँ और गाय का तो बहुत महत्व है, मतलब विश्वकर्मा भगवान, और जब हम नींव रखते हैं, कुछ शुभ काम चालू करते हैं तो ब्रह्मांड क्या वो मानते हैं, मतलब। लेकिन मैं ये भी एडमिट करूँगा कि जो खाते हैं उनको, उनसे मैं नफरत नहीं करता, क्योंकि मैं ब्लड डोनेट करता हूँ। मतलब जैसे अमेरिका और बाहर के देशों में किसी की कोई गलती नहीं होती, मतलब वो उनका वे ऑफ लाइफ है, उनका मतलब साधना है, और मेरी साधना मेरे रास्ते पे है। तो गाय, और मेरा कैलकुलेशन एज अ हिंदू नहीं, एज अ ह्यूमन है कि गाय भैंस हमें दूध और मिल्क और इतना प्रोडक्ट देती है, इतना प्यार देती है, मतलब जो मतलब योगर्ट और दही और हेयर प्रोडक्ट और हेल्थ प्रोडक्ट,
तो मतलब इतनी इंसानियत तो बनती है कि उस प्राणी को हम पूजे और उसको मारे मत और उसको मारकर नहीं खाए। और लेदर प्रोडक्ट में उनका लेदर आ जाता है, लेकिन लेदर प्रोडक्ट में ज़्यादातर ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो लोग मार देते हैं। ये चीज़ गलत है। नेचुरली मर जाए उनका करे तो अच्छी बात है। उसमें भी मैं कॉन्शियस रहता हूँ, मतलब कि ये बने ये गाय भैंस का ना हो। मतलब अलग अलग प्रोडक्ट होती है, इवन मतलब बाटा और मेट्रो कंपनी, और बाटा का पता नहीं मेट्रो में। और यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही ले जा रहा हूँ, 20 या 21 मिनट तक शगुन का आंकड़ा। और सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि मतलब जो वेजिटेरियन खाता है वो ऐसा समझता है कि धर्म का ठेका मैंने लेकर रखा है। अरे भाई, जैसे तुम्हारे वेजिटेरियन खाने के विथ ऑल द रिस्पेक्ट हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो यू ऑल्सो शुड रिस्पेक्ट द नॉन वेजिटेरियन। जैसे कल मैंने मेरे दोस्त के हरमित के साथ बात की कि ऐसा हो तो आप तो मतलब पेड़ को खा रहे हो, और पेड़ की तो हम पूजा करते हैं, तो उसमें भी मतलब कॉन्शियसनेस तो है ही, मतलब जान तो है ही, मतलब तो उसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। और कोई धर्मगुरु खुले हम नहीं कहते कि नॉनवेज खाने में कुछ बुराई नहीं है, ये भी मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन जो ओरिजिनल गुरु हो गए हैं और जिनका गुरु ग्रंथ साहिब और वो है, मतलब तो अच्छा है कि उनकी ब्लेसिंग है। तो मतलब हमारी मिलिट्री और हमारी जो सिख रेजिमेंट है, मतलब सबसे मोस्ट डेकोरेटिव रेजिमेंट, और ऑन ग्राउंड मतलब इन्फेंट्री में तो पूरी दुनिया उनको मतलब सलाम करती है। डोले सोले और मार्शल आर्ट 700 साल से अरदास करके क्या म्यूजिक बनाते हैं वो लोग, रियली ग्रेट, मीन्स वेरी इंस्पायरिंग। दैट्स द रीज़न व्हाई आई शुड लाइक टू से माई सेल्फ एज अ सिख, बिकॉज मैं कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ, अपडेट रहता हूँ। और हिमसेल्फ आवर फर्स्ट गुरु सच्चे बादशाह श्री गुरु नानक देव जी ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे, और मैं खुद ब्राह्मण हूँ। और मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि हम सब इंसान ही है, ये सब मतलब द वे ऑफ लाइफ है। बाद में कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई मतलब मुस्लिम देख रहा हो और समझे कि ये हिंदू है, अपने वाला उसने वाला। अरे भाई, अपने वाला क्या हुआ? तेरे ब्लड ग्रुप 5 है तो अपने वाला तेरा, कोई भी इंसान तेरा अपने वाला ही हो गया। दाढ़ी टोपी तिलक, उससे कुछ वो नहीं होता। मतलब मैं बोल ही रहा हूँ, क्योंकि मतलब अब हद हो गई यार टेररिज्म और टेरर फंडिंग की। मतलब अपने वाला, यही मतलब एजुकेशन में एक फॉल्ट है। अपने वाला ऐसा नहीं सिखाना चाहिए। मतलब सब अपने वाले हैं कि जैसे मतलब मस्जिद टूटे तो हिंदू को दुख होता है, तो मंदिर टूटे तो मुस्लिम को भी दुख होना चाहिए। और गुरुद्वारा तो कभी टूटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लंगर लगते हैं और किसी को भी किसी से धर्म या जात पूछ के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, और हजारों लाखों लोगों का पेट भरा जाता है। मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने पैसे खर्च कर दो, उससे अच्छा है किसी के पेट पालने में खर्चो, तो पैसे भी कम खर्च होंगे और बहुत कम लोग वो क्या बोले कि स्टार्विंग मतलब भूख से मरेंगे। और पानी और खाने में ही मैं तो मानता हूँ कि जब तक ये स्लम्स पूरी दुनिया में ख़त्म नहीं होते, तब तक मतलब मंदिर और मस्जिद और चर्च में पैसे खर्च करना, गुरुद्वारे में इसलिए क्योंकि गुरुद्वारे में सिग्निफिकेंट काम होता है। वहाँ पे मतलब हमारे जो गुरुजी की दीक्षा है और वो सब संस्कार है, मतलब हजारों लोगों के लंगर लगते हैं, तो वहाँ पे मेरा दिल रहता है। मतलब और मैं ये बोलता हूँ, तो फिर ऐसा हो तो गुरुद्वारा भी नहीं, आप थोड़े मतलब स्लम के, सबसे पहले स्लम में काम कीजिए। वहाँ पे अच्छा पानी मिले, वहाँ पे सबको अनाज दाना मिले, और वो भी डिस्काउंट पे मिले, फ्री में नहीं मिले यार। फ्री में मिलेगा तो कदर नहीं रहेगी भाई। वो लोग बेचकर दारू पियेंगे और ना करने का काम करेंगे। 50% डिस्काउंट दे दो, ज़्यादा डिस्काउंट दे दो। मैं ये वीडियो 21 मिनट तक ले रहा हूँ, और वीडियो इसलिए क्योंकि मैं दिल से बोल रहा हूँ कि क्योंकि जैसे कल ही मतलब क्लियर हुआ कि सैटरडे मंडे कोई भी दिन, मतलब मंगलवार को भी नॉनवेज, नो प्रॉब्लम विद दैट। बजरंगबली नाराज नहीं होने वाले, जिसकी पूजा मैं बहुत करता हूँ। हनुमान वड्डवानल स्तोत्र जो संस्कृत में है, और पंचमुखी हनुमान कवच बाय प्रेम प्रकाश दुबे सर जी जो भी संस्कृत में है, और शिव तांडव स्तोत्र, मतलब शिव जी तो मतलब देह शिवा शुभकर्मन कभू न डरो, मतलब वो जो शिव जी का लिंग ही दिखा देता है कि आकार से निराकार, मतलब और वो सिख रिलीजन में भी दिया हुआ है। तो ये क्या है, मतलब हम सब लोगों को तोड़ने की राजनीति नहीं करें, मतलब कि ये अलग है वो अलग है,
मतलब मेरे को तो यही नहीं, सबसे पहले वो हो गया कि मतलब खालिस्तान की बात हुई तो सिखों को अलग कर दिया। मतलब वाह भाई वाह, हद हो गई यार। दुख तो बहुत हुआ मतलब, लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज़ सच नहीं होती बाद में वो चीज़ माइंड नहीं होती, तो उससे दुख भी नहीं होता, क्योंकि सत्य में वो जय थे। मतलब क्योंकि मैं तो जहाँ तक मेरे पिताजी के संस्कार है, मेरी माँ के, तो उन्होंने मेरे को सब गुरुजी की क्या नॉलेज, और इवन मतलब कि जैसे उन्होंने मतलब जनेऊ का त्याग किया, और अकाल और समय से परे है ईश्वर, तो समय का कुछ इतना वो नहीं रहता। मतलब तो समय से परे होकर आपको आपका काम करना चाहिए, आपकी हेल्थ वाइज किसी मजलूम की मदद करनी चाहिए, मतलब जो जिसको वाकई में ज़रूरत है। मैं 25 मिनट तक लेता हूँ। ये अपना पुराना वाला ब्रिज है जहाँ पे वीडियो बनाए थे मैंने, और लेफ्ट साइड वो जो एक्सप्रेस हाईवे का ब्रिज है वो दिखेगा, जो अभी चालू नहीं हुआ है वैसे। और यहाँ पे एसी बंद कर देते हैं। यहाँ पे टर्न है तो यहाँ पे थोड़ा दिखना हार्ड हो जाएगा। रास्ते काफ़ी टूटे हुए हैं, जैसे आगे वीडियो बनाया वैसे, चिखली से नवसारी। अब यही नॉलेज की बात की, आशीर्वाद आया तो एक बार लेट्स चैंट दैट श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मतलब समझने की बात है, और कुछ शायद इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मतलब अपने जो ATS वाले जो MS बिट्टा सर है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, मतलब जिनकी स्पीच ही इतनी खतरनाक है कि मतलब फटाफटी कर देती है। सीधी भाषा में बोलूँ तो जो वो अफजल गुरु को बचाने वाले वकील आए थे, उनको भी क्या जवाब दिया था। 2015-16 की बात है, मतलब दिल खुश हो गया था। मतलब ये है मतलब सरदार, मतलब जो मतलब रक्षा के लिए खड़े होते हैं। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि नॉर्थ में तो यार ऐसा होना ही नहीं चाहिए वेज नॉन वेज का, मतलब क्योंकि नॉर्थ में इतनी ठंड पड़ती है, इतना कश्मीर और पंजाब में भी इवन वैली, और जम्मू में इवन लद्दाख में, तो लद्दाख के लोग तो मतलब सब खाते ही है। और सियाचिन में कैसा सर्वाइव करोगे भाई? सियाचिन मतलब पता है ना आपको, दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है। मतलब शायद रसिया और कनाडा में भी, अलास्का में भी ऐसा, मतलब इट्स अ वेरी हार्ड, मतलब जहाँ पे मतलब हर हफ्ते हर 10 दिन सांस रुकने की वजह से हमारे मतलब सैनिक शहीद होते हैं। तो आप सोचिए मतलब, और आप राजनीति कर रहे हो वेज नॉन वेज पे, इट्स द सेम ऑन यू। मतलब थोड़ा तो मतलब अपना तिरंगा देख लो मतलब यार, क्योंकि पिछले साल तो वो मिदेश मेरा दोस्त, मतलब जिसके मतलब 2 पैर चले गए रेलवे में, उत्तरायण में, सूरत से उत्तरायण वो गया था और मेमू में आ गया, लेफ्ट साइड का तो घुटना भी नहीं रहा। उसकी वाइफ ने केस डाला कि मेरे को तो पता ही नहीं कि ये लोग नॉनवेज खाते हैं। वाह भाई, हद हो गई यार, लॉ एंड ऑर्डर में भी। और वो भी ऐसे समय केस डाला जिस समय उस बंदे ने अपने दोनों पैर गवा दिए, लेफ्ट साइड का तो घुटना भी नहीं। ये हो जाता है मतलब। अब जब डिफेंस की बात आए और उसकी बात आए तब चलेगा सब, वरना राजनीति की बात है, मैं तो बोलता हूँ डिफेंस सबसे पहले है। राजनीति जैसे मोदी जी बोलते हैं राष्ट्र नीति सबसे पहले है। सागर खेड़ू, उसमें सब मत्स्य उद्योग ही तो होता है। मतलब अभी तो मैं जा रहा हूँ वो मद्रास कैफ़े पे मेंदू वड़ा खाऊंगा, और बाद में घर पे तो मतलब खाते रहता हूँ मैं। जैसे खीरा रख दिया है तो बाद में मसाला डोसा बनाने के लिए, और अंडे भी ले लूँगा। अभी तो देसी मुर्गी के अंडे मैंने दोस्त से मंगवाए हैं, मतलब नहीं मंगवाए हैं क्योंकि मैं पैसे देके ही मंगवाता हूँ, तो मंगवा लूँगा। वो तो नवसारी होटल लॉर्ड्स इको इन का दोस्त है, उसने बोला है तकरीबन 15 रुपये में एक पड़ जाएगा, तो 20 इकट्ठा मंगवा लूँगा। क्योंकि देसी रहेगी तो नेचुरल रहेगी, घूमती रहती रहेगी, बॉयलर की तरह सफोकेट नहीं होती है। बॉयलर तो काफ़ी इंजेक्शन वाला बिजनेस हो चुका है, तो उसको मतलब खाने में मेरे को थोड़ा मतलब हेजिटेशन भी होता है। मतलब अच्छा लगता है, हीट वाइज बॉयलर है, लेकिन फिर भी जिस तरह उनको ट्रीट किया जाता है, सुगुना में क्वालिटी अच्छी है सुगुना चिकन में, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइफ में बी ट्रीटेड विद द फ्रीडम, डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। वेज नॉन वेज तो मतलब वो तो साइकिल है। मतलब
और वो वनस्पति में भी आता है और जानवर में भी आता है। तो मैं ये वीडियो 25 मिनट से भी ऊपर निकल गया, कोई बात नहीं कि अपलोड होने में हो जाता है। अभी स्टाइलिंग भी आ रहा है तो होप है मतलब। तो मैं यही कह रहा था कि मतलब वही जो मन की बात दिल की बात करते हैं हम। और अच्छा है कि अभी बारिश नहीं हो रही है, वरना यहाँ पे ऐसा होता कि विजिबिलिटी रेंज में प्रॉब्लम आता। तो आप सबको मैं आनंद चौदस की बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि ये 14 डे है अपने गणपति महाराज का। गणेश जी गणदेवी से में निकला मेरे दोस्त आनंद कापड़िया से बात हुई मेरी कि आप सबको आनंद चौदस की शुभकामनाएं। गणेश जी एक माँ बाप का प्रतीक है, विघ्न हरता है, उसे विघ्न करता मत रखिए, ऑर्गेनिक कीजिए, नदी माता प्रदूषित ना हो। ये सिर्फ एक जश्न और ऐसा वैसा कुछ इनलॉजिकल नहीं है, ये एक हमारा एथिक्स और ट्रेडिशनल और पूजा पाठ का तरीका है। तो एक साफ सुथरा सुगंधित जैसे ओरिजिनल मतलब हिंदू धर्म में रहता है उस तरह से होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है, वो हमेशा रहते हैं। और नदी भी जैसे उसमें हम अस्थियाँ बहाते हैं, मैंने अस्थियाँ बहाई है, मैंने काशी में गंगा में नहीं बहाई क्योंकि मेरी कंडीशन ही नहीं थी मैं वहाँ तक जा पाऊँ। और मैं कैलाश धाम तो जाऊँगा केदारनाथ, क्योंकि मेरे को जो करना है वो मैं करूँगा टाइम बाय टाइम, जैसे मतलब मेरी सुविधा हो, जैसे मैं आगे बढ़ूँ फाइनेंशियल और अदर एज पर यूटिलिटी वाइज। और ये देखिए मैं जहाँ से आ गया वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, अब ये चिखले के नज़दीक एंट्री मार दी गणदेवा के नज़दीक, तो यहाँ पे बारिश हो रही है। ये देखो, ये है वेदर का मज़ा, आप देख सकते हो। पीछे बारिश नहीं हो रही थी, ये रियर मिरर में आप देख सकते हो, मैं देख सकता हूँ, या फिर ये कैमरा पीछे करूँ, ये जियोग्राफी का मज़ा। वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी और इस एरिया में बारिश हो रही है। मैंगलोर में मैंने जब जॉब की थी ना, कर्नाटका में दरिया किनारे केरला में बॉर्डर पे 10 किलोमीटर 75% केरला पीपल रहते हैं, मतलब केरला ही है, लेकिन ऑफिशियली बाद में मैप अपडेट हुए थे तो कर्नाटक में डाल लिया था। तो वहाँ पे हम यूजुअली देखते थे, हमारी पहाड़ी पे हम बैठे हैं तो हमारी पहाड़ी पे बारिश नहीं हो रही कभी, सामने की पहाड़ी में हो रही है जहाँ पे कब्रस्तान है और क्रिश्चियन लोगों का है, थोड़ा बहुत मुस्लिम लोगों का है। और कई बार हमारी पहाड़ी पे बारिश हो रही है लेकिन सामने की पहाड़ी पे नहीं हो रही, और कई बार सामने की पहाड़ी पे नहीं हो रही और हमारी पहाड़ी पे होती है। तो ऐसा अल्टरनेट वहाँ पे देखा है। और यहाँ पे फ्लैट सरफेस ज़्यादा है, मतलब दरिया किनारा है, खेती ज़्यादा है और फार्मिंग ज़्यादा है, जंगल है हवा सापुतारा डांग में, हीरा दूध और वो सब। तो उसी वजह से यहाँ पे बारिश बहुत होती है एक्सट्रीम। इस बार तो मतलब मज़ा आ गया, मतलब अब अगस्त तक तो लगा था कि 2-3 साल पिछले जैसे नहीं पड़ेगी, लेकिन ये तो लगता है कि पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी अब लेटर ऑन। जैसे मतलब गणेश उत्सव है और नवरात्रि में भी थोड़ी बहुत पड़ेगी, ये तो अच्छा है। लेकिन विजिबिलिटी के लिए आपके सामने थोड़ा चैलेंजिंग रहता है ड्राइविंग करना। तो प्लीज़ हैव अ सेफ ड्राइविंग। मैं भी ये पार्किंग लाइट चालू कर देता हूँ, जैसे वो आगे रेड सिप वाले बंदे ने चालू किया है। और ये वीडियो ले लेते हैं 31 मिनट तक, पीछे का वाइपर भी चालू कर देता हूँ, सेफ्टी फर्स्ट। क्योंकि 1,43,234 किलोमीटर्स। तो आप सबको आनंद चौदस की शुभकामनाएं। आप अपने माँ बाप के साथ माँ बाप की पूजा करके उनकी आज्ञा के अनुसार उनको समझा के उनको प्यार से, मतलब he and she is the God of your, वो है तो हम है, हमारे में वही है। बोलो बोले बीजू બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર ના કદી જશો નહીં। एक्चुअली મને બહુ વર્ડ્સ યાદ નથી ગુજરાતીમાં એક્ઝેક્ટ, બટ ધીસ ઇઝ ધ માય હાર્ટ એન્ડ ફોર ધેમ ધીસ ઇઝ કિલોમીટર એન્ડ EV। और ये फ़ोटो मैंने ले ही ली क्योंकि मेरे को लगा कि ये फ़ोटो रहनी चाहिए हमेशा। दिस इज़ द मैसेज टू होल वर्ल्ड दैट नेवर स्टार्ट अ बिजनेस जस्ट टू मेक अ मनी, स्टार्ट अ बिजनेस टू मेक अ डिफरेंस।
क्योंकि टेरर फंडिंग और वो सब हो जाता है, किसी को नुकसान होता है, कोई मर भी जाता है. इट्स जस्ट वेरी बैड. वी मस्ट हैव अकाउंटेबिलिटी टू देम. सो गाइस, टेक केयर. आई एम टेकिंग दिस वीडियो तो 31 मिनट्स लॉन्ग. सो आप अपना ખ્યાલ રખીએ. હેપી ગણેશ ઉત્સવ, ગણેશ ચતુર્થીની તમને શુભકામના 14મા દિવસની. ટેક કેર. પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ, શેર એન્ડ જય હિન્દ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય.